I am Suniti Rajput presenting a special report of Metro Mirror Forward India Forum 10 Inspiring Young Minds Award Ceremony held on 23rd of April at IHM Auditorium. Awards were based on my video for 2022 contest on the subject of my expectations from government, society and media. Students of various colleges participated in the contest. The contest campaign was very effectively launched through social media platforms. More than 50 personalities from various areas endorsed the campaign as goodwill ambassadors. Video received by various college students were judged by eminent jury members headed by Jury Chairperson K.G. Suresh, Vice Chancellor of Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism. The award ceremony, Professor Sanjay Dwivedi, Director General of IIMC, New Delhi, was chief guest along with galaxy of guests of honors. Professor Pushpendra Pal Singh, Chairman PRSI, Dr. Anand K. Singh, Principal IHM, Dr. Sonal Sisodia, Principal DCBM, Indore, Mr. Pradeep Karambelkar, a well-known entrepreneur, startup mentor, and Mr. Shivharsh Sohalka, Editor-in-Chief of MetroMirror.com and co-founder of Forward India Forum, Think Mix Tank. After Saraswati Vanna and lighting of lamp, the guests on the dais were welcomed by Mr. and Mrs. Sohalka by presenting the Tulsi plant. Chief guests and the guest of honor on the dais expressed their opinion and praised about the innovative initiative taken by the Metro Mirror and its founder Mr. Sohalka to discover and recognize the talented young minds who need guidance and mentorship. Supriya Sinha, Goseya Banu, Kapil Mishra, Sangam Sharma, Arunima from Makhanlal Chaturvedi, Nupur Mangal from Sage University, Shruti Goel from LNCT, Sachin Srivastava from JLU, Adib Khan from LNCT, and last but not the least, Tanvi Mangal from DCBN. All of these inspiring young minds were presented with exclusive shimmering trophies and citations. The chief guest, Professor Sanjay Dwivedi, and other dignitaries present. The award winners were also called to express their opinion about the contest and the award. Professor Sanjay Dwivedi and other guests of honor presented on the dais were presented with mementos of the 10 Inspiring Young Minds ceremony. Mr. Sohalka presented the vote of thanks and specially mentioned the support provided by IHM students, its principal Dr. Anand Kumar Singh, and Life Insurance Corporation of India. Mr. Sohalka invited all for the high teas. Thank you. टेन इंस्पायरिंग माइंड अवार्ड जीतने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने इस प्रतियोगिता में भाग क्यों लिया और अब अवार्ड जब आप जीते हैं तो इसमें आपका क्या रिएक्शन है और आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं? सर, क्योंकि मुझे इसका जो टॉपिक दिया गया था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा और कुछ नया लगा, जिसमें से क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पे लोग कॉपी पेस्ट वगैरह चीज़ कर लेते हैं, बट ये एक ऐसा टॉपिक था जिसमें आपके विचार जानने थे और कहीं से कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ थी। और उसके बाद इसका जो टाइम ड्यूरेशन था, जैसे कि 5 से 6 मिनट का था, यानी कि 2 मिनट के दे दिया, 3 जो जनरल लोग कर देते कि फटाफट करके निपटा दिया, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इस पर मैंने काम किया और फिर मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी, उसके बाद मैंने इस पर वीडियो बना के भेजा और इसके साथ जब मुझे पता चला कि मैं जीत गई हूँ तो वाकई बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझे इस चीज़ के लिए ख़राब भी लगा कि मैं उस समय प्रोग्राम में नहीं आ पाई। और उसके बाद सुप्रिया ने मुझे ये फोटोग्राफ्स वगैरह भेजी थी तो बहुत ही अच्छा लगा सब देख के। अब आप डिग्री जब आपकी पूरी हो जाएगी तो आप किस एरिया में जाना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, आपके क्या सपने हैं, मैं जानना चाहूँगा। सर, क्योंकि मैं माखनलाल यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म के कोर्स कर रही हूँ तो मैं जर्नलिज्म में ही जाना चाहती हूँ और मुझे ये फील्ड अच्छी लगती है, मुझे यहाँ का काम करने का तरीका अच्छा लगता है, स्पेशली ग्राउंड रिपोर्टिंग अच्छी लगती है और जो समाज के मुद्दे हैं, लोगों की बात है उन तक, सरकारों तक और अन्य जो भी बैठे लोग हैं ऊपर, उन तक पहुँचाने में मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है करने में।
तो मेरा मेन फोकस जर्नलिज्म ही है। जर्नलिज्म में है जी। आप को मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज जो सरकार है या समाज है या मीडिया है, उनके लिए आपने जो बताया उससे आगे कुछ चीज है जो आप बताना चाहेंगे कि हम चाहते हैं, उनसे अपेक्षाएं क्या है आपकी? सर बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी अपने इंटर्नशिप के दौरान सबसे ज्यादा जो चीजें देखी हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं यूथ में, वो ये देखी है कि जिन्होंने भी तैयारियां वगैरह की हैं उस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान है। जो भी स्टेप्स हैं अब उनको हर्डल्स आ रहे हैं उनके उस चीज को पाने के लिए। तो मैं चाहूंगी जो भी इस तरीके के सिस्टम बनाए जाते हैं तो ऊपर स्तर के लोगों तक पहुंच नहीं पाते उनकी प्रॉब्लम्स, लेकिन नीचे वाले स्तर में जो लोग बैठे रहते हैं उनमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है। तो इस चीज को ध्यान में थोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि हमारा यूथ जो है वही आगे फ्यूचर है इंडिया का। और आप अपना नाम बताएंगे? नमस्कार सर, मेरा नाम कपिल मिश्रा। आप कौन सी क्लास में हैं और कहाँ पढ़ते हैं? मैं BSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 4th सेमेस्टर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय। आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसने प्रेरित किया? सर हमारे क्लास के HOD और प्रमुख HOD रह चुके हैं संजीव गुप्ता सर। उन्होंने एक इमेज भेजी थी मेट्रो मिरर की, जो पोस्टर आया था, और उन्होंने बताया कि आप जब इस कंपटीशन में भाग लेंगे तो आपके क्या ये आयाम निकल कर आएंगे और आप भी शिक्षित होंगे कि किस प्रकार आपको बोलना है और किस प्रकार आप अपनी अपेक्षाएं लोगों के सामने रख सकते हैं। तो मैं इससे प्रेरित हुआ और मैंने सोचा कि इस महत्वपूर्ण कंपटीशन में भाग लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं ये अवार्ड आपके करियर में किस तरह से मील का पत्थर साबित होगा? बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचाता हूं तो कहीं ना कहीं लोगों को भी लगता है कि ये आम जन से ही बात निकल कर आई है, तो आम जनता को वो दिल को छू जाती है। और मैं समझता हूँ जब मैं अपनी अपेक्षाएं लोगों तक पहुंचाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं समझेंगे कि ये शायद मेरी भी अपेक्षाएं थी जो इसने वीडियो के थ्रू पहुंचाई। तो ये मील का पत्थर जरूर साबित होगा। और कोई बात जो आप सरकार, समाज और मीडिया को कहना चाहेंगे जो आप उस वीडियो में नहीं कह पाए? मैं कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि काफी लोग शिक्षित हो गए, लेकिन नैतिक शिक्षा का स्तर अभी भी काफी नीचे है। तो हमें लगता है कि इस वीडियो से और जहाँ भी हम अपनी बात रखना चाहें, मेट्रो मिरर तो एक बड़ा साधन है कि हम इससे अपनी बात कह सकते हैं और वो लोगों तक महत्वपूर्ण तरीके से पहुंचती है। तो जब हम ऐसी बातें कहते हैं तो लोगों तक पहुंचती है और वो अपेक्षाएं लोगों की अपेक्षाएं बन जाती हैं। तो शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है और शिक्षा, लोगों को शिक्षित होना चाहिए और शिक्षा से ही आगे रोजगार भी मिलेगा, आगे अन्य आयाम भी मिलेंगे और लोगों की बातें भी समझ सकते। देश से या जो युवा पढ़े लिखे निकलते हैं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, उनमें बेरोजगारी बहुत कम हो, 0 हो जाए, उसके लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे सरकार से? रोजगारी बिल्कुल कम हो सकती है। जरूरत है हमें शिक्षित लोगों को हर वो काम करने की जो अपने आप को छोटा समझते हैं, वो करने से। लगता है कि आज अगर एक युवा शिक्षित हो गया है तो वो काम नहीं करना चाहता जिससे उसको नीचला महसूस हो, लेकिन उनको ये समझने की जरूरत है कि हर एक काम व्यापार बनकर उभर सकता है। और अब तो एक नया स्टार्टअप आ गए, आप लोन लेकर स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, छोटी सी छोटी चीजें भी स्टार्टअप बना के अपनी शुरू कर सकते हैं। तो रोजगार स्वतः ही खत्म हो जाएगा अगर मेंटालिटी ऐसी हो जाएगी कि हम कोई भी काम कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं आज की तारीख में युवाओं के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? प्रमुख मुद्दे रोजगार और शिक्षा ही है, लेकिन समझने की आवश्यकता है कि शिक्षा और रोजगार दोनों मिले जुले हुए मुद्दे हैं। अगर आप शिक्षित होंगे तो रोजगार भी स्वतः मिलेगा, शिक्षित नहीं है रोजगार तब भी मिल सकता है। स्टार्टअप आज वैसे भी आदमी खोल रहे हैं जो गांव में रहते हैं, उन्हें पढ़ना नहीं आता लेकिन उनके पास रोजगार है क्योंकि उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया और इतने बड़े आयाम पर लेकर गए कि जो शिक्षित लोग हैं वो भी अपने स्टार्टअप इतने अच्छे से नहीं ले जा पाए। तो शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोजगार नहीं खोल सकते। हालांकि शिक्षित होने से आपको नए आयाम मिलते हैं, नई चीजें सीखने को मिलती हैं और आपको पता चलता है कि हम कितने सक्षम हो सकते हैं और कितने आगे जा सकते हैं। तो दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण है और स्वतः ही उसका खात्मा हो सकता है। आपको पुनः 10 इंस्पायरिंग यंग माइंड अवार्ड जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई, और हम आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में और अपने करियर में बहुत आगे बढ़ेंगे और मेट्रो मिरर को याद करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल याद करेंगे सर। धन्यवाद बहुत बहुत। आपका नाम बताइए। संगम शर्मा। आप कहाँ स्टूडेंट हैं? सर मैं वैसे रहने वाली शिवपुरी मध्य प्रदेश
कोर्स फर्स्ट ईयर का कर रही हूँ भोपाल मध्य प्रदेश, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आपको 10 इंस्पायरिंग यंग माइंड अवार्ड जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, इसका आपने ही अपॉर्चुनिटी दी है, इसके हम आए हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको भाग लेने के लिए किसी ने प्रेरित किया कॉलेज से या आपने खुद अपनी इच्छा से? सर जब मुझे इस बारे में पता चला था, मुझे कॉलेज के द्वारा ही पता चला था। सर ने इसका व्हाट्सएप पर स्टेटस डाला था और साथ ही साथ ग्रुप में भी शेयर किया था। तो मैंने सर से इसकी डिटेल ली कि ये क्या है, और फिर मुझे अपने कुछ थॉट्स जो इसके जरिए सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट से क्या, गवर्नमेंट सोसाइटी से क्या है, मीडिया से क्या है, वो रखने का एक मौका मिल रहा था। तो इसको एक तरह से कॉलेज ने मुझे इंस्पायर किया है, उसकी तरह से मुझे मिला। आप क्या सोचते हैं अवार्ड आपके करियर में किस तरह से हेल्प करेगा? सर ये जो अवार्ड है मेरे करियर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। जिस फील्ड में मैं हूँ वहाँ पर अपने थॉट्स मेन जो इम्पोर्टेंट है वही रखता है कि अपन अपने विचार किस तरह से रखते हैं, उस दुनिया के सामने किस तरह से प्रकट करते हैं। एक उसका सर्टिफिकेट है कि हाँ मैं अपने विचार सबके सामने रख सकती हूँ, इतनी मेरे में काबिलियत है। आपने अपने वीडियो में सरकार, समाज और मीडिया से जो अपनी अपेक्षाएं हैं वो आपने खुद ने प्लान की थी, खुद ने लिखी थी? जी सर। उसमें आपने बहुत सारी बातें बताई और बहुत अच्छा वीडियो आपने बनाया। उसके आगे आज आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे जो आपकी अपेक्षाएं हैं सरकार से, समाज से और मीडिया से? सर जिस तरह का माहौल अभी देखने मिलता है कि कभी दंगे हो रहे हैं, कभी ये हो रहा है, लेकिन एक यूनिटी है जो अभी भी कमी रखती है कि अपनी इंडिया में यूनिटी नहीं है। मतलब अगर छोटी सी बात हुई है तो फिर वो मुद्दा वही आ जाता है, कहने को हम सब भारतीय एक हैं, लेकिन जब एक बात आती है कि हिंदू धर्म में मुसलमान है तो फिर हम वापस बढ़ जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो चीज है ये हटे, सरकार में इसमें कुछ योगदान करे कि हम इस चीज से भी लड़ सकें। एक चीज एक्सपेक्टेशन यही है, और मीडिया का भी यही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि मतलब वो बताए किस तरह से हम इंस्पायर होना चाहिए कि किस तरह की सोसाइटी में हमें रहना चाहिए। तो एक कॉमन एक्सपेक्टेशन मेरी सरकार से, समाज से और हमारी देश की मीडिया से यही है। आप क्या सोचते हो आज युवाओं के मुद्दे क्या हैं, असली मुद्दे क्या हैं आप युवाओं के? सर युवाओं के मुद्दे अगर मैं अपने वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सर राइट्स का एक बहुत वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि राइट्स नहीं मिलते कहीं कहीं पर। मैंने ऐसी काफी रूरल सोसाइटीज देखी हैं जहाँ पे लोगों को, खासकर जो बैचलर्स है, यूथ है, उनको अपने राइट्स के लिए बहुत लड़ना पड़ता है। तो एक राइट्स का वो होना चाहिए। साथ ही साथ पेरेंट्स और जो बच्चों में कम्युनिकेशन है कि बच्चा क्या चाहता है वो एक तरह से पहुंचे, मतलब जाने कि हाँ कि हम